How Kumbhak works for cancer. Okay, what is cancer? If we define it in a very simplistic manner, we'll know how to come out of it. So, cancer is uncontrolled growth of tissue, any kind of cancer. Am I right? All the people who are present here. Am I right? Uncontrolled growth of tissues is cancer. So, what is the key point? Uncontrolled, control. You have lost the control. Now, what is the treatment? You'll have to get back the control. Now, how do you control anything and everything in your life? Let's understand it. Let's understand life in terms of dynamic aspect of life. How do we control anything and everything in our life? How do we control it? Somebody wants to push you down on the ground. You're standing. How do you hold your ground? How do you resist that? If has held your hand and he's just moving your hand, how do you control it? How do you control your body action? How do you balance your body? How do you control any activity of in your life? And that is what we want you to understand. If you don't understand this, you'll not. There is no therapy as such. There is no treatment of cancer. If you don't bring back the controlling factor of your body, अगर आप जो controlling factor है आपके शरीर का वापस नहीं लाते हैं, there is no treatment for cancer. You think chemotherapy is a treatment for cancer? Recurrence has happened, or relapse or recurrence has happened nowadays. It has become like it is happening very frequently. It is because of the treatment. So how do you control? You always hold your breath and then control anything and everything. Even if you have to focus, your breath becomes slow. Focus on a point and try to see. If you hold your breath, you'll be able to focus more, isn't it? You get up. How do you do it? You hold your breath. How do you lift a weight? वजन कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं ना. अगर एक टांग पे खड़े हो जाएं, you just stand on one leg and try to balance yourself. What do you do? क्या करेंगे? अंदर क्या करेंगे? सांस रोकेंगे ना. Walking, jogging, yoga, Zumba, aerobics, dancing, singing, whatever you are doing, how are you controlling it? How do you control any kind of an activity in your life? By variable amount of breath hold behind. आप देख नहीं पा रहे ना, लेकिन सांस रोक रोक के ही कंट्रोल कर रहे हैं. What is the difference between your ancestors and you? आपके पूर्वज और आपके बीच में क्या फर्क है? उनको कैंसर नहीं था ना. उनके बीच में और आप में क्या फर्क है? They could use their body more powerfully. They had more capability of effort making. Their ability to make effort was more. How do you make effort? Any kind of an effort? By breath hold. Without holding your breath, you can't make any effort. Kumbhak is the controlling factor of your life. Now you lost the control. How do you bring it back? By practicing Kumbhak only. Kumbhak is the only treatment. Is there any other treatment? Can there be any other treatment? No. Write it on a stamp paper. एक स्टैम्प पेपर पे लिख लो. Going forward, you will at least remember what somebody has said. तो आप कैंसर को ठीक कैसे करेंगे? कंट्रोल लाके. जो लूज कर गए, कंट्रोल कैसे लाएंगे? सांस रोक के कंट्रोल लाते हैं. कुंभक करके कंट्रोल लाते हैं. कुंभक फैक्टर वीक हो गया, कुंभक फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा. एंड मैं तो एक बात और कह रहा हूं. आई एम एरोगेंट इन सेइंग इट. देयर कैन नॉट बी एनी अदर ट्रीटमेंट. अगर आपके कुंभक शक्ति शरीर की है, अगर आपका कंट्रोलिंग फैक्टर है, तो बाहर से भी सपोर्ट आपको ठीक कर देगा. मगर वो बाहर से सपोर्ट ने ठीक नहीं किया, आपकी ही शक्ति ने ठीक किया. योर बॉडी ओनली कैन ट्रीट यू, नोबडी एल्स. इवन गॉड कम्स, भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे. आप ये अब बात आज समझिए, आज से 10 साल बाद समझिए, और कभी भी समझो, समझना यही पड़ेगा. So how does Kumbhak work? Kumbhak works in treating cancer. Having said it, but how much you have lost and how much you can bring it back, that is always a question mark. कितना आपने लूज किया कुंभक शक्ति और कितना आप वापस ला सकते हैं इन अ particular time span, that is the only question mark.
But the moment you start doing Kumbhak, you start reversing your disease. Swamiji, many people want to join the program, or they want their mother or father or a family member to join the program, but that person is weak, वो काफी weak है, bedridden हो जाते हैं. Will this program also help a person who is bedridden? We offer a one-to-one session. Now, in that one-to-one session, what do? We see the state of that person. हम उसकी ना उस समय की अवस्था को देखते हैं और एक एक प्रैक्टिस दे देते हैं उनको कि वो बिस्तर पे पड़े पड़े वो एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. वो एक प्रैक्टिस बिस्तर पे पड़े पड़े भी करना शुरू करेंगे. दे विल स्टार्ट रीगेनिंग एनर्जी. दे विल स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ बेड. व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग मूविंग अराउंड, जब उनके अंदर थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है, थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है उनकी, उसके बाद बाकी प्रैक्टिस वो करना शुरू कर सकते हैं. तो जो बेड रिडन है उनके लिए तो उपाय ही क्या है. उनको कुंभक अगर लेटे लेटे भी करेंगे तो ही वो उनकी रिकवरी फास्ट होगी. बिकॉज द बॉडी हैज लॉस्ट इट्स रिकवरी स्ट्रेंथ. उसको बढ़ाना तो पड़ेगा आपको. बिना बढ़ाए कैसे करेंगे. सो अच्छा रहेगा कि ऐसे लोगों को वन टू वन सेशन करवा जाए. लेकिन अगर आप अदरवाइज भी आते हैं तो विल सी व्हाट वी कैन डू. बट यस, बेड रिडन पीपल मस्ट डू कुंभक. Uh, which diet is forbidden for cancer people? We are not a diet program as such, but which diet is forbidden for cancer people? सो गिव 10 kids द सेम काइंड ऑफ अ डाइट. आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है. 10 बच्चों को एक ही जैसा डाइट खिलाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, नाप तोल के. विल दे ग्रो इन द सेम मैनर? क्या वो सभी एक जैसे बड़े होंगे, हाँ या ना? नहीं होंगे ना. नहीं होंगे ना. सो डाइट से बढ़ रहे हैं वो या कुछ और है. देयर इज समथिंग एल्स वी आर मिसिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. 80-year-old पर्सन, 80 साल का बूढ़ा इंसान, 80 साल तक फूड खाया ना, भोजन खाया. भोजन खाने से ताकतवर होते हैं ना लोग. तो 80 साल का इंसान ताकतवर हो गया, कमजोर हो गया? 80 years he has taken food. So he must have, he should have become a superhuman ना, सुपरमैन बन जाना चाहिए उसको. बना ये कमजोर हो गया. तो भोजन खा के तो आप कमजोर ही हो रहे हैं. ऐसा वन, गिव मी वन एग्जांपल वेयर by taking food for a certain amount of time the person has become like superhuman, शक्तिशाली बन गया. ऐसा कोई एग्जांपल है दुनिया में? हिस्ट्री में कोई एग्जांपल है? यू आर मिसिंग व्हाट, यू आर मिसिंग सम पॉइंट. आप कुछ तो मिस कर रहे हो ना. फिर आपको कोई डाइट प्लान भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है आपको, पर आप क्यों नहीं देख रहे? यू आर वाइज पीपल, आप समझदार लोग हैं. केवल पढ़े लिखे ज्यादा हैं, है ना. ज्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं होते लोग. हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते. तो यू आर वाइज पीपल. आप भी जरा देखिए जीवन कैसे काम करता है तो आपको समझ में आएगा ना. तो व्हाट डाइट प्लान इज द कैंसर डाइट प्लान? नो डाइट प्लान. ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसे कहें तो नेचुरल, सीजनल, रीजनल ऐसा कर दो कुछ. बट देन इट विल नॉट इंक्रीज योर रिकवरी स्ट्रेंथ. फूड से आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती. इफ यू हैव द फंडामेंटल बल ऑफ योर बॉडी, अगर आपके शरीर में रिकवरी स्ट्रेंथ है, फूड कैन हेल्प यू आउट. मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और सम मेडिसिन कैन हेल्प यू आउट. बट दे कैनॉट बिकम ट्रीटमेंट. थेरेपी नहीं बना, ट्रीटमेंट नहीं बन सकता. ट्रीटमेंट तो आपका शरीर ही करे. योर बॉडी स्ट्रेंथ इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट यू हैव गॉट. आपके शरीर की शक्ति, रिकवरी स्ट्रेंथ इज द ओनली ट्रीटमेंट यू हैव गॉट. यू मस्ट इंक्रीज दैट रिकवरी स्ट्रेंथ. वो वापस आ, स्वयं की स्थिति, स्वास्थ्य में आने की जो आपकी शक्ति है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा. और वो कुंभक से बढ़ता है. क्या कुंभक करने से कैंसर सेल्स कम हो जाते हैं? डू कैंसर सेल्स रिड्यूस आफ्टर डूइंग कुंभक थेरेपी? अच्छा, ये दो बातें आपको समझना.
पड़ेगा। पहला, इफ यू रिमूव कैंसर सेल्स फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वो नए कैंसर सेल बन जाएंगे। सो अगर आप शरीर से कैंसर सेल निकाल देते हैं तो नए कैंसर सेल बनना कम नहीं होता। ठीक है ना? सो यू कैन डू योर डिटॉक्स बाय मेनी मेनी मेथड्स। आप आराम से डिटॉक्स कर कैंसर। कुंभक ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिंग द बॉडी, क्योंकि प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करेंगे, प्रेशर में ही डिटॉक्स होता है। तो कुंभक से डिटॉक्स होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बट डिटॉक्सिंग योर बॉडी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। है ना? सफाई है, थोड़ा झाड़ू लगाने से गंदगी नहीं बनना बंद नहीं होगा। कैंसर इकोसिस्टम जो है उसमें नए कैंसर सेल बनना बंद नहीं होगा सफाई करने से। तो सफाई करना इज नॉट ट्रीटमेंट। दैट इज वाई कीमोथेरेपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। इट इज जस्ट अ ब्रूमिंग। आप घर को थोड़ा साफ कर दिया, फिर गंदगी दोबारा आ जाएगी कल को। सो योर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक राइट सेल्स। आपका शरीर सही तरीके के टिश्यूज और सेल्स नहीं बना रहा, है ना? कंट्रोल ओवर द ग्रोथ फैक्टर्स हैज बीन लॉस्ट। कुंभक वहां पे काम करता है। It corrects the cancerous ecosystem. It improves the metabolism. It improves the recovery strength. It improves the immune factor. It improves the detox factor. It improves the regenerative strength. है ना? तो ये ट्रीटमेंट है। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो कुंभक से क्या कैंसर सेल निकलेंगे शरीर से? हाँ निकलेंगे, बट दैट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ डिटॉक्स। है ना? तो वो तो होगा, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। ये आपको समझ, आज समझो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझदार हैं। जस्ट यूज योर विजडम, नॉट योर एजुकेशन। यूज योर विजडम, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। Okay, this is a question about asking. I think a person is asking for case studies. Do you have cases where patients had chemo and radiation done, where after chemo and radiation, cancer was managed well, and using Kumbhak, it did not come back for 5 years? वन थिंग, द रेकरेंस रेट हैज इंक्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ, 20 साल पहले कैंसर का रिलैप्स या रेकरेंस जो होता था वो 10-12 साल लगते थे। नाउ इट इज 4-5 years। इन 10 years टाइम इट विल बिकम 2-3 years। 2-3 साल हो जाएगा वापस आने में। और उसके बाद तो बुरी हालत है। इट इज बिकमिंग एपिडेमिक। कैंसर एपिडेमिक बन रहा है ना दुनिया में। इट विल बिकम एपिडेमिक इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। ठीक है? सो योर ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग। देर इज एनफ प्रूफ इन द लास्ट 50 years। 50 साल का प्रूफ उठा लो। वॉट एवर नैरेटिव, वॉट एवर ट्रीटमेंट दैट करंट डिस्पेंसेशन इज डूइंग, अभी जो एलोपैथी कर रहा है, उससे कैंसर दुनिया में कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। रिलैप्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, टाइम पीरियड इज शॉर्टन। हमारे को तो 5 साल भी नहीं हुआ इस प्रोग्राम को करते हुए, तो केस स्टडी 5 साल का तो आएगा नहीं। बट वी हैव एनफ केस स्टडीज, वी हैव एनफ पीपल वेयर even if with chemotherapy their cancer was not being managed properly, just by introducing kumbhak it got managed। हाँ, एक केस ऐसा भी है जिसका कैंसर ठीक हो गया। इन द टेस्ट कैंसर वाज ओके, but then doctor said कि there are 3-4 sessions of chemotherapy remaining, so go through it, कर लो, and that person is no more। so question mark, chemotherapy आपकी एज कम कर रहा है क्या? there are a lot of questions to be asked। तो हमारे पास बहुत केस स्टडी है वेयर देयर वाज अ लेडी जिसका लंग का एक पार्ट ही रिमूव कर दिया गया था आफ्टर डूइंग कुंभक। उसको 1 साल तक लंग कैंसर तो कुछ आया ही नहीं। So, and many cases where we have done some scientific research also where Kumbhak actually improves the mitochondria health of your body, the powerhouse of your body. So that is why the moment you start Kumbhak, you start getting more energy. You feel more energetic. एकदम से first day and you feel more energetic। ठीक है ना? ब्लड कैंसर, सी कैंसर तो एक ही है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू। ब्रिंग द कंट्रोल बैक। आप कैसे भी बताओ, मैं उसको वहीं पे पकड़ूंगा फिर। ब्लड कैंसर बोलोगे तो भी वो कैंसर है।
लिवर का बोलोगे तो भी है, लिम्फेटिक बोलोगे तो भी है, वही है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। प्रोस्टेट का है तो भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ कैंसरस टिश्यू। सो द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर रिमेन सेम इन एवरी काइंड ऑफ कैंसर। वहां पे हम काम कर रहे हैं, तो रिकवरी तो होती ही है, रिकवरी तो सब में होगी। द ओनली थिंग इज, द ओनली क्वेश्चन वी आर आस्किंग इज, कीमोथेरेपी आपको बचाता है या खत्म करता है? सेकेंड क्वेश्चन, इफ देर इज नो डायग्नोसिस फॉर कैंसर, हाउ यू आर मेकिंग इन्फरेंस? कैंसर का कोई डायग्नोसिस होता ही नहीं, देर इज नो डायग्नोसिस फॉर कैंसर, इट इज जस्ट एन इन्फरेंस कि विच एवर सेल एब्जॉर्ब्स मोर ग्लूकोज इज कैंसर। आपका जो पेट स्कैन किया जाता है उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, कैंसर का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, पता ही नहीं है। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्या आपको सच में कैंसर है? दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, क्या सच में किसी को कैंसर है, और इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस ऑन विच ट्रीटमेंट इज डन। नाउ इफ यू बिकम फाइन, यू योर बॉडी हैज रिकवरी स्ट्रेंथ, आप ठीक हो जाएंगे तो टैग लगा देंगे बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी यू बिकम फाइन। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑफ द योर इनेट बॉडीज recovery strength you have become fine, even though you have been pushed to some kind of deviation through whatever treatment that has been done. But lot of question to be asked, and we don't have any proof that cancer is decreasing in the world. In fact, it is becoming epidemic. In the next 10 to 15 years, it will become epidemic. So are we creating cancer? This question needs to be asked because there is enough proof. भाई हमारे पास तो बहुत प्रूफ है कि कैंसर रिड्यूस हो जाता है, हमारे पास तो प्रूफ है, हम आपको दिखा देंगे, सैकड़ों लोग हैं हमारे पास। बट इज देयर अ प्रूफ दैट कैंसर इज डिक्रीसिंग इन द वर्ल्ड? तो आपको क्वेश्चन और भी तरीके से पूछना चाहिए, राइट? वी कैन शो यू लॉट ऑफ टेस्टिमोनीज। जब लोगों के घर में आसपास कैंसर फैल रहा होता है तो काफी नेगेटिव थॉट्स आती हैं दिमाग में कि मुझे कुछ ना हो जाए। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये डर क्यों हो रहा है जबकि कुछ भी नहीं होता है? ये तो मुझे पूछना चाहिए आपको, ये डर किसने फैलाया? हम तो नहीं फैला रहे, हम तो कहते हैं आप ठीक हो सकते हो बिल्कुल, अपने बॉडी के इनेट रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, कुंभक करिए, आप ठीक हो जाएंगे। इज योर बॉडी डिजाइन फॉर अ केमिकल कंजम्पशन? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं, तो इस शरीर में अगर आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ केमिकल खाने के लिए, तो इसमें केमिकल डालने पे आपका कॉमन सेंस कहाँ जाता? एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग द वर्ल्ड। डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, नेम अ डिजीज और मुझे बताओ 100 साल का एविडेंस है कोई ठीक होने का? गिव मी एन एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज बिकम फाइन। जस्ट एक डायबिटीज, मेडिसिन खा के कौन डायबिटिक ठीक हुआ? गिव मी एन एग्जांपल इन द लास्ट 100 ईयर, 100 साल में एक एग्जांपल दे दो। When a body is not designed for a chemical intake, putting chemicals inside will create lot of disturbance. आप तो कैंसर क्रिएट कर रहे हैं ना। एक बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पैरासिटामोल एट होम? पैरासिटामोल, पेन किलर्स, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, एनी काइंड ऑफ अ पेन किलर, स्टेरॉइड्स और एनएसएआईडी, कितने लोगों के घर में है? बताओ ना, पेन किलर है? हाथ तो उठाओ कम से कम। पेन किलर कैसे काम करते हैं? पेन किलर कैसे काम करते हैं? ग्रोथ फैक्टर को रोकते हैं वो, ग्रोथ फैक्टर को रोकते हैं, बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। व्हाट इज कैंसर? डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर। तो ये आपने किया या किसी और ने किया? हाँ, यू मस्ट हैव टेकन पैरासिटामोल इन एवरी काइंड ऑफ फीवर। आपने लिया होगा ना पेन किलर, पैरासिटामोल।
तो ग्रोथ फैक्टर को आपने डिवेट किया ना उस टाइम पे, तो आज ग्रोथ फैक्टर डिवेट हो गया। आर यू हैप्पी अबाउट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ग्रोथ फैक्टर को खराब करोगे तो कैंसर होगा। तो जो पेन किलर्स हैं वो ग्रोथ फैक्टर को खराब करते हैं, तो कैंसर होगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, होगा ही होगा, सबको होने वाला है। तो आर वी इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग डिजीज? यस, अ बिग यस। सबसे मूर्ख प्रजाति फिरंगियों के हाथ में पड़ गए हैं आप, वो बर्बाद करके ही मानेंगे आपको। और आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छाई के नाम पे बर्बाद करेंगे। अच्छाई के नाम पे बर्बाद करेंगे। द डम्बेस्ट ह्यूमन रेस वो रूल कर रहा है, तो फिर दुनिया तो बर्बाद होगी। मगर आपकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, बताओ ना? आपका डॉक्टर लेगा? इफ यू गेट ऑन बेड एंड देन कुछ भी हो जाए किसी को, तो वो कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई उन्होंने पैरासिटामोल खिलाया ना आपको, विल दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर हैज हैपेंड नाउ? एनी हॉस्पिटल, WHO, अमेरिका? आपके फैमिली भी लेना चाहे ना तो भी नहीं ले पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज ओपन अप योर आईज। योर बॉडी हैज द कैपेसिटी ऑफ रिकवरी। नो बडी एल्स, नॉट इवन गॉड्स। भगवान आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आपका शरीर ठीक कर सकता है। एम्पावर इट, योर लाइफ विल बिकम बेटर। Dev Prasad Gundaji, you have raised your hand. You have a question? Okay, so there are people, there is somebody's mother who has been detected with submucosal fibroid or polyp or severely thickened endometrial lining. तो उनको एडवाइस किया है पहले स्टेरोस्कोपी करने के लिए, फिर बायोप्सी करने के लिए टू सी इफ इट इज कैंसरस और नॉट, and to remove the uterus, but they want to avoid surgery. I've asked them for their number, so that we can take details and advise them about the program. But would you like to say something over here, sir? देखो, एनी काइंड ऑफ कैंसर, क्या है, कोलोरो रेक्टल कैंसर। हाँ हाँ, एनी काइंड ऑफ कैंसर, इट्स ए, once again please understand it, it's an uncontrolled growth of tissue। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलो अपने आप को, बार बार समझने की कोशिश। इट्स एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यू विल हैव टू गेट द कंट्रोल बैक। नाउ एनी काइंड ऑफ अ कैंसर, what we do basically is we do a prana shakti diagnosis. We do a prana shakti diagnosis. That means we'll make you do some experiment with your breath. You'll give us the numbers, and then we'll create a kundali of it, breath kundali, and then we'll find out what are the weak factors in your body, and then we'll give you customization. So we'll customize certain things which will help in your particular kind of a problem. Uh, Primarily the customized practice, but then there are other practices that you need to learn also. So, in terms of how you see cancer from outside, it can be on any part of the body, right? स्टेजेस किसी को मालूम नहीं होता, इट्स एन अंदाजा। स्टेज में मत जाओ, इट्स एन इट्स एन अंदाजा होता है ना? आप थोड़ा सोच रहे हैं कि अच्छा इतना फैल गया तो स्टेज, देर इज नो स्टेज एज सच फॉर कैंसर, बट ना इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड दे कैटेगराइज इट, और उसको स्प्रेड को रोका जा सकता। तो इसीलिए दिमाग में मत बैठाइए स्टेज 4, स्टेज 3, वो अच्छी बात नहीं।
बट बाहर से देखने से तो इट कैन बी प्रोस्टेट, कैन बी लिम्फेटिक, इट कैन बी इन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ये आपको बाहर से देखने को मिलता है। बट फ्रॉम विद इन, अंदर से अगर देखेंगे तो एक ही चीज मिस हो गया ना, द कंट्रोलिंग फैक्टर, द कंट्रोल इन द ग्रोथ, इन द रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यू हैज बीन लॉस्ट। आप बाहर से देख रहे हैं तो अलग अलग नाम रख दिया उसका। देखो फिरंगी ना नामकरण संस्कार में बहुत ज्यादा तेज है, वो कुछ भी देखते हैं वो अपना नाम डाल देते हैं वहां पे, ठप्पा लगा देते हैं ना वो। इंडिया में आए तो कहते हैं इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय व्हाट, वास्को डी गामा, है ना। तो ये सब चीजें मूर्खता वाली चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा शायद अभी। बट नेमिंग अ कैंसर डजेंट मीन एनीथिंग व्हेन यू डोंट हैव अ, वी डोंट इवन नो व्हाई कैंसर हैपेंस। एलोपैथी को तो कैंसर के बारे में मालूम ही नहीं कि कैंसर होता क्यों। नॉट इवन कैंसर, जस्ट एनी क्रॉनिक डिजीज। डायबिटीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हार्ट डिजीज क्यों होता है, लिवर खराब क्यों होता है, ये खराब, थायराइड क्यों होता है, पता ही नहीं है क्यों होता है। केवल वो अंग्रेजी नाम में आपको फंसा देते हैं, दो चार ग्रीको रोमन वर्ड बोल देंगे, फिर आप फंसे रहोगे उसी में घूमते रहोगे, उससे सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो आप ये जो शब्दावली बोल रहे हैं ना, वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, ये वाला वो वाला, इट डजंट मीन एनीथिंग, है ना। कीमोथेरेपी तो सबको वही कर रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, बस यही दो तीन चीजें हैं। सर्जरी इज बेस्ट, अगर कोई ट्यूमर है सर्जरी कर लो, दैट इज बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्यूनोथेरेपी वर्स्ट, ह्यूमन जीनोम खराब करने वाले हैं हम, पक्का। कीमोथेरेपी सफाई है, नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज इट जस्ट पॉइजन, मस्टर्ड गैस है, हिटलर इसी से मारता था लोगों को, तो सफाई करने के लिए कीमोथेरेपी। रेडिएशन, वंस अगेन, रेडिएशन से क्या हो जाएगा, कैंसर सेल मारेंगे ही आप, नहीं बनाने तो बंद नहीं कर पाएंगे। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो मॉड्यूलेशन अगर आप कर देंगे तो आपकी शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ ही खत्म, क्रैश कर दिया जाएगा। नॉट जस्ट दिस जनरेशन, वी आर एक्चुअली किलिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इम्यूनोथेरेपी इज जस्ट लाइक किलिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सर्जरी इज द बेस्ट थिंग, अगर सर्जरी किसी का हो सके तो वो करवा ले, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो सर्जरी भी ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट अ लिटिल मैनेजमेंट, जहां पे कि आप कोई ट्यूमर निकाल देते हो, इट इज स्टिल नॉट अ ट्रीटमेंट, बट द बेस्ट ऑप्शन इज सर्जरी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। फिर आप नाम नाम लेते रहो, ये कैंसर वो कैंसर, से क्या हो जाए। लिवर के लीजन्स में कैंसर थेरेपी काम करती है? इज कैंसर थेरेपी इफेक्टिव इन लीजन्स ऑफ लिवर? Cancer therapy, Kumbhak therapy, yes. We have done that scientific research where we have found that the inflammatory markers in the body goes down with Kumbhak practice. Inflammatory marker जो है ना आपके बॉडी का, देखो इस टाइम पे अगर आप ब्रॉडर सेंस में समझोगे, अगर ब्रॉडर सेंस में समझोगे तो ना एसिडोसिस, ह्यूमन बॉडी का ना एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए कैंसर में आपको बोलते होंगे एल्कलाइन 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 चीजें ले, एल्कलाइन चीजें ले, है ना, है ना। कोई भी अगर आपका एसिडिक फैक्टर बढ़ेगा तो लिवर पे असर आए। कीमोथेरेपी का सबसे खराब असर कहां आता है, लिवर पे। एंटीबायोटिक्स लिवर, पेन किलर्स लिवर। Every 2 out of 3 people in cities have liver discrepancy और liver का issue है, and the more you do chemical intake, the more liver gets impacted. So what the research says that कुंभक करने से ना inflammatory markers आपके बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। लिवर की रिकवरी कुंभक करने से बड़ी तेज होती है, इट हैपन्स फास्ट, बट देन देयर इज अ मेथडोलॉजी टू डू इट, क्योंकि लिवर के साथ में हमको अलग तरीके से डील करना होता है। So yes, any kind of lesion in the liver or even up to the level of cirrhosis can be handled. One question which I think you have answered earlier, but it is referring to
Prevention of relapse. Does Kumbhak therapy help in prevention of relapse? Prevention of relapse. What can prevent relapse? है ना? What can prevent relapse? ये आपको देखना चाहिए. इसको अगर आप समझेंगे, you will be able to understand what to do. ठीक है ना? Once again, I'll go by the same definition, but then I'll take another example. मैं दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. Now let's understand cancer from the perspective of metabolism. Metabolism क्या होता है? The ability of your body to utilize food. आपके आपके शरीर की क्षमता फूड को यूटिलाइज करने की is called as metabolism. So, cancer is a metabolic disorder. Let's first establish it. आपको क्या बताया गया? ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, जेनेटिक तो हम बना रहे हैं. अब कैंसर प्राइमरीली इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये समझो. नाउ इन योर बॉडी देयर आर टू एस्पेक्ट्स, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी. They work in an inverse manner. Inverse manner. If metabolism improves, immunity goes down or balances out. If immunity improves, metabolism goes down. Now, आप सभी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना? आपकी इम्यूनिटी हाई होती है ना? कैंसर केस में सबकी इम्यूनिटी हाई है ना? इम्यून फैक्टर्स हाई है ना? हाई है ना? आप देखोगे तो इम्यून पैरामीटर्स हाई होंगे अभी बॉडी में. व्हाट इज immunotherapy? It is getting it down, which is not okay, which is not right. तो इसको ऐसे समझते हैं. इफ वी इंप्रूव, नाउ इम्यून फैक्टर इज हाई, मेटाबॉलिज्म इज वीक. इफ वी इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म, द इम्यून फैक्टर विल बैलेंस आउट. योर कैंसर गया. ठीक है. पहला हमने क्या स्टैब्लिश किया? वीक मेटाबॉलिज्म, हाई इम्यूनिटी. नाउ इफ यू इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म, द इम्यूनिटी विल बैलेंस इटसेल्फ आउट. वो बैलेंस कर लेगा. कैंसर गया. ठीक है. नाउ व्हाट कैन इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म? असली क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म? Is there a medicine to improve the metabolism? There cannot be a medicine. There cannot. In fact, your metabolism has gone down because of intake of chemicals or medicine. Now, what is metabolism in terms of effort? जोर लगाने की क्षमता में metabolism क्या है? If you inhale for a certain amount of count, say suppose you inhale for 5 seconds. If you are able to hold it for 20, that means 4 times of how much you can inhale. तो आपका metabolism improve हो जाएगा. Now this is Kumbhak practice. So in a particular manner, if we make you do Kumbhak practice, your metabolism will improve. You will push your metabolism to improve. Suddenly your immune factor will balance out. आ गया जी, ठीक हो गया. अगर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो. There are many ways in which I can make you understand what is cancer. Now, you know, don't take me wrong, और इससे पहले ही मैं आपसे माफी मांग लेता हूं. कैंसर people or patients are confused in their mind. They are confused in their mind. Now, what is cancer? It's a confusion of your innate intelligence of this body. शरीर के इंटेलिजेंस का कंफ्यूज होता है. दैट इज वाई इट इज नॉट मेकिंग राइट काइंड ऑफ सेल्स. टिश्यूज नहीं बना पा रहा. सो कंफ्यूजन ऑफ इनेट इंटेलिजेंस of this body is cancer. Another way to look at it. If you have lost your balancing factor, if you have lost your balancing factor, it is cancer. Balance of metabolism and immunity, balance of your body, balance of the pressure ecosystem of your body, the balance of thermal ecosystem
टेम्परेचर का बैलेंस, प्रेशर का बैलेंस आपके बॉडी का. इफ यू हैव लॉस्ट द बैलेंस ऑफ योर बॉडी, इट इज कैंसर. If you have lost the rhythm of life, the ability to do something in a rhythmic manner, that is cancer. And I can keep on describing cancer in so many different ways. But then, what can be the treatment? If I describe it in many, many ways. So that is why I'm describing cancer in a dynamic way where you have the control to bring the deviated dynamic back. कुंभक इसीलिए कुंभक के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली आप करके इसको ठीक कर सकते. इफ आई से कंफ्यूजन, हाउ विल यू करेक्ट इट? Again, Kumbhak works as the fundamental to correct even your confusion, to improve the balance, to improve the pressure ecosystem of your body, to improve the thermal ecosystem of your body, to improve the material management, that is metabolism, to balance out immunity, to improve the regenerative factor. Kumbhak is the only method which can actually get you out of genetic deviation. अगर आपका क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, हमारे पास प्रूफ है इसका. If you have genetic deviation, chromosomal defect, and we have proof, lab reports that Kumbhak actually corrects the genetic defect. कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट ठीक कर देगा, कौन सी दवाई ठीक कर देगी? नहीं ठीक कर पाएगी कोई भी, है ना? So we need to look at cancer from various different kind of perspective where we can get to some kind of solution towards it. At present, we don't even know why cancer happens. The way the current dispensation or allopathy doesn't even know why cancer happens. It is making hypothesis. हाइपोथेसिस पे सारा कुछ चल रहा है आपका. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and queries. It's getting close to 9, so we'll be closing the